Children, now we are discussing about chapter number 3, that is soil. In the earlier class we have discussed about what is soil, how is it formed, and what does it contain. So now let us do some experiments. Why do we do experiments, children? In order to come to a conclusion, to prove something practically. What is an experiment? We want to prove something practically and we should conclude that yes, this happens. In order to come to a conclusion we have to do some experiments, ताकि आप ये जो बोलना चाहते हो वो सही है या नहीं आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो by doing an experiment. So let us see the first one. See, experiment में हमेशा 3 important things होते हैं. The first one is aim. AIM. Aim means target. Target मतलब आप क्या करना चाहते हो, आप क्या रीच होना चाहते हो, आप क्या मतलब आपको क्या करके दिखाना है, वो अपना एम होता है. सो हियर आवर एम इज़ टू फाइंड आउट व्हाट सॉइल कंटेन. सॉइल में क्या क्या है, जैसा हमने सॉइल में ये है वो सब हमने पहले डिस्कस किया ना. जस्ट लाइक कि सॉइल में बहुत वेराइटीज़ होते हैं, जैसा क्ले, सैंड, ग्रेवल, और उसमें मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ह्यूमस है, जो भी है. हम अभी ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं to find out what soil contains, what soil have. So aim ये है अपना. Now the second thing, things required. In order to do something practically, अगर आप कोई भी चीज़ कुछ करके दिखाना चाहते हो तो करके दिखाने के लिए अपने पास कुछ सामान भी चाहिए, isn't it? So what the things that we need, required means need. चाहिए हमको क्या क्या चाहिए? A glass jar, कोई भी एक ग्लास जार ले लीजिए. Then water and a handful of garden soil. हर कोई मिट्टी मत उठाना. garden soil means जिसमें अच्छा plants वगैरह grow होते हैं, field soil या garden soil. So you have to take a handful, complete hand में भर के मिट्टी लीजिएगा. Next, the third one, it is method. Method means the procedure that we are going to do. Method means तरीका, मतलब आप कोई भी procedure जो भी follow कर रहे हो उसको हम बोलेंगे method. So children, the first one it is aim. आपका target क्या है, आप क्या prove करना चाहते हो. Next, things required, what are the things that you need to do something. Then the third one it is method, what the procedure that you had to follow. So put the soil in the jar. So simply take a glass jar and put the soil in the jar. Add a glass of water. After pouring the soil into the jar, add a glass of water. ग्लास भर के इतना भी पानी मत डालो जो वो जार से बाहर ही निकल के आए. Okay children, have one glass, that depends upon the size of the jar that you have taken, and mix the soil and water well. अच्छा से कोई एक स्पून या कुछ भी लेके अच्छा से वाटर एंड सॉइल को आप मिक्स करिएगा. let the mixture stand for 15 to 20 minutes. अभी जो भी आपने मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद आपको जो चीज़ मिला है उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सर. चिल्ड्रन, सी द मीनिंग ऑफ मिक्सचर इज़ गिवन हियर. Something that is made by 2 or more things when they are mixed together. What do you mean by mixture? Mixture means कोई भी दो चीज़ों को जब आप मिलाते हो, दो चीज़ें मिलके जो चीज़ बनी है, will get one thing, that is nothing but mixture. Mixture मतलब mixing of some or other things. Okay, so जैसा आप शुगर एंड वाटर मिक्स कर लिया वो एक मिक्सचर बन जाएगी. शुगर में दूध में हमने शुगर डाल दिया, दैट इज़ ए शुगर एंड मिल्क मिक्सचर. इन द सेम वे चॉक पाउडर और सैंड मिला सकते हो, सैंड एंड वाटर. अभी इसमें हमने क्या यूज़ किया? वी हैव यूज्ड सैंड एंड वाटर एंड वी हैव कंबाइंड बोथ दीज थिंग्स एंड वी गॉट अ मिक्सचर ऑफ दीज टू थिंग्स. ओके, सो लेट इट स्टैंड फॉर 15 to 20 minutes. स्टैंड मीन्स बिल्कुल हिलाने के बिना उसको एक बार अच्छा से आपने मिक्स कर दिया एंड यार मिक्सचर इज़ रेडी. देन लेट इट स्टैंड फॉर, लेट इट रेस्ट फॉर 15 to 20 minutes. 20 minutes तक बिल्कुल हिलाइएगा मत, इसको आराम से ऐसा रेस्ट करने दीजिए. नाउ ऑब्जर्व द जार. उसके बाद आप अच्छा से जार को बिल्कुल ध्यान से देखिए. सी हियर द जार that contains a mixture can be seen here. In that we can see
some layers. So what do you see at the bottom? अब bottom में बिल्कुल at last आपने क्या देखा है? पेबल्स एंड मड. देखो नीचे छोटी छोटी जो भी हमने पेबल्स के बारे में भी पहले डिस्कस किया था. पेबल्स मीन्स छोटी छोटी जो स्टोन्स होते हैं, दोज आर पेबल्स. पेबल्स भी देख सकते हो. एंड मड. मड मतलब जो गीले वाली मिट्टी जैसा जो होता है ना, वो बारिश के टाइम पे मिट्टी में बारिश आ गया तो जो मड फॉर्म होता है, दैट इज़ नथिंग बट, क्योंकि इधर अपन अच्छा गार्डन सॉइल में हमने वाटर मिक्स दिया तो ऑब्वियसली वी कैन सी मड ऑल्सो. मड एंड पेबल्स यू कैन सी एट द बॉटम. बॉटम मतलब बिल्कुल लास्ट में आप ये चीज़ देख सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट यू सी अबव द पेबल्स एंड मड? जस्ट पेबल्स एंड मड के ऊपर आप क्या देख सकते हो? चिल्ड्रन, while watching the video, take care, hold your book also along with you so that you can see the picture very carefully. Okay, at the bottom बिल्कुल झार की लास्ट में हमने देखा पेबल्स एंड मड. आफ्टर दैट जस्ट अबव पेबल्स एंड मड मतलब जस्ट पेबल्स एंड मड के ऊपर आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? यस, मडी वाटर, क्ले एंड सैंड. थोड़ा थोड़ा सैंड, रेत जैसा चीज़ें आप देख सकते हो आराम से. और मडी वाटर मतलब मिट्टी मिला हुआ पानी. मडी वाटर मीन्स मिट्टी मिला हुआ पानी. जैसा पानी में मिट्टी मिलाओ तो कैसा ब्राउनिश कलर में नहीं आता है, सीधा कलर दैट इज़ हियर. एंड क्ले, क्ले भी दिख सकती है, मडी वाटर हो सकती है, या हल्का फुल्का कहीं रेत की 2-3 खन भी आप देख सकते हो. नाउ व्हाट यू नोटिस ऑन द टॉप? बिल्कुल टॉप में आपको क्या दिखेगी? बिल्कुल टॉप में आपको क्या दिखेगी? यस, व्हाट वी कैन सी इज सम क्लियर वाटर. एक अच्छा पानी का लेयर आप देख सकते हो. क्या देख सकते हो? एक क्लियर वाटर, क्योंकि पेबल्स ये हैवी होता है तो पानी की जस्ट नीचे आ जाते हैं. और सेकेंड लेयर में क्या है? थोड़ा सा मड्डी वाटर और उसमें रेत भी है, वो भी थोड़ा वेटेड है तो थोड़ा ऊपर आ गया ये. और बिल्कुल ऊपर क्या रहेगी? बिल्कुल जो भी वो मिट्टी के पानी से जितना क्लियर वाटर आ सकता है वो सिर्फ एक लेयर ऑफ वाटर को आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू डू इट प्रैक्टिकली यू कैन डू ईजीली. कुछ नहीं, घर पे कोई भी ग्लास जार हो उसमें ये डाल के आप कर भी सकते हैं. नेक्स्ट, द सेकेंड वन. Again, aim means what we want to do is to observe that soil contains water. मैंने मैम ने आपको ये भी बोला कि soil contains water. soil में water भी होता है. अच्छा होता है क्या? let us see. things required, what do we need? again soil and a clean bottle of glass. अभी इसमें क्या ले रहे हैं? ओनली नॉर्मल सॉइल लिया हमने. एक सॉइल ले लीजिए थोड़ा, एंड क्लीन बॉटल ऑफ ग्लास. ग्लास बॉटल जैसा आपकी जैम केचप वगैरह आते हैं ना, वो बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हो. बट इट शुड बी क्लीन्ड थॉरोली. अच्छा से क्लीन करिए, बिल्कुल साफ प्लेन दिखना चाहिए. ओके, नाउ मेथड, व्हाट वी वांट टू डू इज़ पुट सम सॉइल इन द बॉटल. बॉटल में थोड़ा सा सॉइल रखिए एंड क्लोज द माउथ ऑफ द बॉटल विथ ए कॉर्क. विथ अ कॉर्क मीन्स क्या है? आपको रबर कॉर्क्स मिलेंगे, वुडन कॉर्क्स मिलेंगे. जैसा आपको क्या बोलूँ, मतलब लिड जैसा ही चीज़ है कॉर्क. वो आपका पूरा जो भी बॉटल की लिड की जगह इधर हम कॉर्क यूज़ करते हैं. कॉर्क मीन्स जो भी लिड हम यूज़ करेंगे उसी को कॉर्क बोलते हैं. जो प्लास्टिक से भी बना हुआ कॉर्क्स मिलते हैं, रबर कॉर्क्स मिलते हैं, एंड वुडन कॉर्क. मतलब पूरा लिड को अच्छा से बंद कर सके. और उसी लिड की जो जहाँ बॉटल की ऊपर ओपनिंग की जो होल होता है ना, उसके बीच में इसको कॉर्क को रख दो तो बॉटल बंद हो जाएगा. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉर्क कीज. ओके, एंड क्लोज द माउथ ऑफ द बॉटल. बॉटल की जो माउथ है उसको लिड की जगह अपन कॉर्क से क्लोज करते हैं. इज इट ओके चिल्ड्रन? लीव इट इन द सन फॉर अबाउट हाफ एन आवर. सो आपने क्या किया? सम सॉइल लिया, एंड सॉइल लेने के बाद लिड से बंद करने के अलावा हियर हमने यूज़ किया कॉर्क. कॉर्क मतलब एक छोटी सी टुकड़ा आता है रबर की या वुडन की. वो आप अपनी बॉटल की माउथ की साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा किस साइज़ का कॉर्क चाहिए, एंड उसको अंदर ऐसा फिट करेंगे कि कॉर्क नीचे नहीं जा सके, उधर ही बंद होके रहे, और वो लिड जैसा काम करता है कॉर्क. ओके, सो लीव इट इन द सन फॉर अबाउट हाफ एन आवर. जहाँ अच्छा धूप आता है उस जगह आप रखिए फॉर हाफ एन आवर. व्हाट डू यू नोटिस? आफ्टर हाफ एन आवर आप क्या देख सकते हो? सॉइल में मॉइस्चर रहता है. तो सॉइल जब हीट होता है, हीट होने से क्या होता है?
सन की हीट में रखा तो मतलब क्या है, इट इज़ गेटिंग हीटेड, हीट होने से वो मॉइस्चर ऊपर आ जाता है, वाटर वेपर एवोपरेट होके छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आपके ग्लास जार की साइड्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। व्हाट कैन यू सी, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, मतलब छोटी छोटी पानी की छोटी छोटी बूंदे बॉटल की साइड में आया हुआ आप अच्छा से ऑब्जर्व कर सकते हो। कब कर सकते हो, आपकी बॉटल बिल्कुल क्लियर होना है और आपकी कॉर्क जो भी आपने यूज़ किया वो बिल्कुल माउथ को टाइटली फिक्सअप होना है, ना नीचे आना है ना प्रॉपर टाइट नहीं हुआ तो आप ये चीज़ अच्छा से नहीं देख सकते हो। अच्छा से कर क्लोज किया और सन में मिनिमम हाफ एन आवर, वो भी अच्छा खासा धूप जब है उस टाइम पे आप रखिएगा, है ना। देन यू कैन क्लियरली सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अराउंड द ग्लास बॉटल की इनसाइड में आप छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट द थर्ड वन, aim. Again here what we want to prove is to observe that soil contains air. हम soil में water होता है, air होता है और ये हमको ये सब हमने पहले डिस्कस किया था। सो पहले हमने ये क्लियर कर दिया कि सॉइल में क्या क्या होता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में पेबल्स होते हैं, मड, सैंड एंड इवन वाटर। अगर अच्छा से ज़्यादा मिक्स किया तो पूरा वाटर ऊपर आ जाएगी एंड सॉइल का लेयर्स आप देख सकते हो। एंड इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट वी हैव प्रूव्ड दैट सॉइल कंटेन्स वाटर कैसा आया वो आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा। नाउ द थर्ड वन टू ऑब्जर्व दैट सॉइल कंटेन्स एयर। यस, सॉइल में एयर भी है, ये भी हमने सीखा था। तो हाउ कैन वी प्रूव दैट सॉइल कंटेन्स एयर, लेट अस सी। थिंग्स रिक्वायर्ड, अगेन हमें क्या चाहिए, ड्राई सॉइल, मतलब बिल्कुल गीला नहीं होना है। ड्राई मीन्स बिल्कुल सूखा, मतलब रेत, सूखा जो रेत होता है ना वो लीजिएगा आप। देन टेक अ ग्लास बाउल ऑल्सो, take a glass bowl, dry soil and water. So we need three things. What they are? Dry soil, glass bowl and water. Now the method what we have to follow here is put some dry soil in a bowl. We have taken a glass bowl and we have to pour the dry soil in the bowl. Now pour water slowly, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए उसमें। You will see air bubbles form as you pour water. ऐसा नहीं जैसा आपने इतना सा बहुत कम, हैंडफुल से भी कम, एक स्पून भर मिट्टी लिया और बड़ी सी जग से पानी डाल दिया, देन यू कैंट सी। अच्छा से थोड़ा सा वो बाउल भर के आप जो भी बाउल की साइज़ के हिसाब से वो हाफ फिल्ड मिनिमम हो, ऐसा आप सैंड लीजिए, ड्राई सैंड, एंड इसके ऊपर वाटर बॉटल से धीरे धीरे पोर वाटर स्लोली, इन अ वेरी स्लो मोशन यू हैव टू पोर द वाटर। और वाटर इधर डाल रहे हो और ऊपर नीचे इधर उधर आप देखोगी तो आप ये एक्सपेरिमेंट में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, बिकॉज यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट यू आर डूइंग। ओके, सो यू विल सी एयर बबल्स फॉर्म एज यू पोर वाटर। जैसा आपने पानी डाला तुरंत मिट्टी में छोटी 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 बबल्स आते हैं, बिकॉज एयर इज प्रेजेंट इन इट। वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर प्रेजेंट होता है, तब भी आप जैसा पानी डाला तुरंत बबल्स आया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। वाई डज इट हैपन, क्यों होता है ऐसा, वाई आपको ऐसा बबल्स क्यों फॉर्म हुआ, लेट अस सी। See that word conclusion, what is given here, conclusion मतलब finally हम ये बोल सकते हैं what happens, it happens because why we can see the bubbles, because the air in the soil escapes and forms bubbles. soil की particles क्या लिया हमने, इधर dry soil लिया। dry soil मतलब soil और soil की छोटी छोटी कणों के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, उस स्पेस में एयर फिलअप होता है। जैसा आपने पानी डाल दिया तो एक के साथ एक थोड़ा वो सॉइल की पार्टिकल सब चिपक जाएंगे, तो बीच में जो हवा है वो एस्केप्स मीन्स टू गेट फ्री मतलब वो उधर से उड़ जाएंगे, दे विल गायब हो जाएंगे उधर से। टू गेट फ्री, दे विल गेट फ्री एंड फॉर्म्स बबल्स। दैट्स वाई जब वो एयर उधर से बाहर जब फ्री होने निकल जाती है तो बबल्स फॉर्म होता है। सो इट इज़ क्लियर दैट इफ़ यू कैन सी बबल्स वी कैन से दैट वी कैन कंक्लूड दैट सॉइल कंटेन्स एयर। सॉइल में एयर भी है तभी तो ये बबल्स फॉर्म हुआ। और आप ना क्लेई सॉइल लीजिए, जो अपन माउल्ड वगैरह करेंगे बोला था ना, उसमें अच्छा से पानी भर के फिर पानी भर के देखना, तब कोई बबल्स नहीं आएगा। पानी से आपने वेट कर दिया तो उसमें एयर की कंटेंट कम हो जाएगा, तो अब कहाँ से आएगा। आप ऊपर से पानी डालो तो वो ज़्यादा गीला गीला हो जाएगी, बाकी यू कांट ऑब्जर्व एनी बबल्स। सो आपको ये एक्सपेरिमेंट ड्राई सॉइल में, इससे सबसे बढ़िया है कहीं काली ग्राउंड वगैरह जहाँ है, जिस दिन
बारिश नहीं हुआ, रेत सूखा सूखा दिख रही है ना, उस टाइम आप आराम से ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो. Okay children, what you have to do is just pour some water in it and you have to observe whether the air bubbles are coming or not. So if you can see the air bubbles, you can conclude that soil contains air. Okay, so we have done 3 experiments. In the first one we have find out that what soil contains, soil में क्या क्या चीज़ें हैं. Next in the second one we came to know that soil contains water भी है, and in the third we have proved that soil contains air also. Okay children, so go through these experiments. आप कभी भी फ्री हो, ये आराम से बहुत easy experiments है, ज़्यादा चीज़ें की भी ज़रूरत नहीं, but if you do this practically you can understand about that more in a very effective way. Okay, thank you.